जाती हैं तो वह सामने जब सारी इंद्रियां थक जाती हैं तो वह सामने जो सुख उपस्थित है उसे भी भूलकर सो जाते हैं, ताकि अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा में विश्रांति का आनंद ले सकें। इस प्रकार इंद्रियातीत आनंद सहज सुलभ है, और इंद्रिय सुख से जिसकी परिणति सदा दुख में ही होती है, कहीं अधिक श्रेष्ठ है। Let's just see once in English also, because it will help us understand which kind of metaphor is being talked about here. किस तरह का यहाँ simile दिया गया है. One second, I think I scrolled far. Yeah. So a man in his waking state puts forth innumerable efforts for experiencing sensual pleasures. When the entire group of sensory organs is fatigued, he forgets even the pleasure on hand and goes to sleep in order to enjoy rest in the soul, his own nature. Shankara, the great Vedantist, had written. Ultra sensual bliss is thus extremely easy of attainment and is far superior to sense delights, which always end in disgust. So, जब भी हम अपनी इंद्रियों को प्लीज करने के लिए, whenever we are involved in satisfying our senses, we will definitely result in our downfall. That's the disgust that's being talked about here. अगर हम अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पतन के रास्ते पे ही जाएंगे। अगर एक खुशबू किसी फूल की बहुत अच्छी लगती है तो उसका विष का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमारी ये जो इंद्रियों की जो लालसाएं हैं वो हमें इन्हीं पॉइजन से बचने का एक मार्गदर्शन देती है, कि ये बुक यही कह रही है कि उन इंद्रियों को कैसे वश में करना है। Today itself, I happened to read one particular very short story, and I want to share that because it's also related to the flower. So, if you may allow, because here it would make sense. So, once there was a bee. एक बार एक bee होती है, एक honey bee होती है. वो देखती है. So there was a honey bee, and she used to see that every day she goes to the garden of the king, and by passing that garden, going to each flower, she used to see that there was a drain, a dirty drain that was passing by, and there lived a small insect in it. तो एक पास से एक गंदा नाला सा बह रहा होता था राजा के बाग के पास में, उसमें एक गंदा कीड़ा रह रहा होता था. So one day that honeybee got sight of that particular insect, that insect, and she said, it said to the insect, how come you can stay in such a polluted water, और कैसे तुम इतनी गंदी सी जगह में रह लेते हो? तो कीड़ा बोला, ये मेरा घर है. The insect said, this is my home. And then the honeybee said, okay, wait, I'll show you what heaven looks like. मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जन्नत कैसी होती है. तुम मेरे साथ चलो and मुझसे दोस्ती कर लो. मैं कल आऊंगा और तब तुम मेरे साथ चलना. So she says, it says that you become my friend, I'll show you what heaven is. Become my friend and I'll take you along tomorrow and I'll show you what heaven looks like. And next day, that honeybee comes and takes that insect on its back, and it takes it for a राउंड इन द गार्डन. तो वो उसे अगले दिन कीड़े को अपने कंधे पर बिठाकर बाग में ले जाता है और उस कीड़े को एक फूल पर बिठा देता है. सो इट पुट्स द इंसेक्ट ऑन वन ऑफ द फ्लावर, and by that time it gets busy in sucking the nectar from other flowers. वो बाद में बाकी फूलों से ना वो रस चूसने में बिजी हो जाती है. तो शाम होती है, by evening it forgets to pick up the insect from there. वो भूल जाता है कि उसे वहां से कीड़े को उठाना है. Or the flower that the insect was sitting on, that closed eventually. तो शाम होते होते वो फूल बंद हो जाता है. Obviously उसके बंद होने का टाइम है, तो वो कीड़ा उसी में बंद हो जाता है. It gets trapped in the flower. Next day the gardener comes and plucks the flower. अगले दिन माली आता है, फूल तोड़ता है और uses that flower in a garden, garland, sorry, एक माला बनाते हैं वो बिहारी जी के मंदिर में भेजने के लिए. So that garland was to be used for Lord Krishna's let's say decoration. Yeah. So वो जब माला उन बिहारी जी के गले में पहुंचती है, बिहारी जी के गले में पहनाई जाती है, he was given that garland, he was adorned by that garland.
By the end of the day, the garland was taken out and it was sent in Yamuna Nadi, the holy river Yamuna. तो अगले दिन, सॉरी, रात तक वो माला भी उतारते हैं और नदी में, यमुना नदी में परवा देते हैं. That's when the insect says and feels and talks to itself that uh, वारे भवरे, तेरी दोस्ती ने तो मुझे भगवान का स्पर्श भी करवा दिया और अंतिम अंतिम समय में मुझे यमुना जी में प्रवाहित भी करवा दिया. So the insect says, by the grace of your friendship, honeybee, I got the opportunity to touch Lord, be a part of his garland, and eventually get the opportunity to be in the holy river of Yamuna for my last rites, as if it's my last time. So, in my last time, I'm a part of the holy river itself. So, this particular story was metaphorical of the people that we have in our life. इसमें बताया गया है कि जो लोग हमारे सत्संगी होते हैं, the people that, like this group right now, जिन लोगों के साथ हम अपने अच्छी बातें और पॉजिटिव चीजें शेयर करते हैं ना, वो हमें उस गंदगी से जो हमारे अंदर है, हमारे इस वासनाओं की, गुस्से की, ईर्ष्या की, all the jealousy, envy, greed, lust, everything that's within us, people like us, which we learn from whom we learn from, they are like that honeybee who pulls out from that polluted water, take us to the heavenly abode, and in a very spiritual manner. So that was something that just clicked me by this paragraph, कि अगर आपको फूल दिख रहा है ना, आपको प्लेजर दिख रहा है अपनी सेंसेस में, तो आपको पॉइजन नहीं दिख रहा. You're not able to judge what's the poison in that flower. So here the paragraph talks about being mindful of that poison. And continuing further, um, sorry, I took long on elaborating this with this story. It was just fresh in my mind. सो या सो उन्होंने कहा इसका उपयोग अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी. इससे अज्ञान के, सो इट्स अबाउट अ स्वॉर्ड, अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. अगर हम अपनी वासनाओं को, अपने काम, क्रोध, वासना, लोभ, हर चीज को, उन ग्रीड को, इन सारी सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली चीजों को अगर हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो इट विल वर्क लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, जिसका अच्छे और बुरे दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है. यू कैन यूज द स्वॉर्ड टू कट. इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ नाइफ टू डू अ सर्जरी फॉर अ वुंड. अगर कोई घाव हो गया है, उसकी सर्जरी के लिए भी चाकू ही काम आता है. तो आप चाकू को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, इट डिपेंड्स ऑन यू. Are you using the knife or the sword for healing or cutting a wound open to, kind of do a surgery on it to uh, heal it, or are you actually stabbing it more and keeping yourself wounded? So ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें इस से अज्ञान के फोड़े को चीर डाला जा सकता है. जस्ट बॉयल, जैसे फोड़ा निकल आता है ना, आप उसे सर्जरी करके, कोई बार अपने आप से नहीं फूटता तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो भी चीरा लगा के ही काटता है. द डॉक्टर ऑल्सो कट्स इट ओपन एंड देन द पस कम्स आउट एंड देन यू गेट हील्ड. सो अगर आपको इस तरह का कोई मन को जब यह स्वीकार हो जाता है कि आध्यात्मिक नियम से बचा नहीं जा सकता, तभी बुद्धि उचित मार्ग पर चलती है. व्हेन वी एक्चुअली फाइनली एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट एस्केप स्पिरिचुअलिटी, इवेंचुअली दैट्स द वे आउट. इवेंचुअली आपको अध्यात्म पकड़ना ही पड़ेगा, तभी आप उचित मार्ग पे चल सकते हैं. दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू फॉलो द राइट पाथ. एंड फाइनली मेरे गुरु अपने पुरुष और स्त्री शिष्यों को अपनी संतान मानकर उनसे खुलकर मिलते थे. उनकी आत्मा की समानता को जानते हुए वे उनमें कोई भेद नहीं करते थे और कोई पक्षपात नहीं दर्शाते थे. तो फॉर अ सेंट लाइक हिम, फॉर अ सेंट लाइक श्री युक्तेश्वर जी महाराज, देयर वाज नो डिफरेंस इन द जेंडर, be it a man or a woman. So everybody was, he was unbiased towards everybody. Yeah. So let's move on. Okay. I hope my screen is visible. Yeah. Yeah, very much. So
Keen intelligence, I'll just repeat this. Keen intelligence is two-edged. Master once remarked in reference to Kumar's brilliant mind. It may be used constructively or destructively like a knife, either to cut the boil of ignorance or to decapitate oneself. Intelligence is rightly guided only after the mind has acknowledged the inescapability of spiritual law. My guru mixed freely with men and women disciples, treating all as his children. Perceiving their soul equality, he made no distinction and showed no partiality. In sleep, you do not know whether you are a man or a woman, he said. Just as a man impersonating a woman does not become one, so the soul impersonating both man and women remains changeless. The soul is the immutable, unqualified image of God. Sri Yukteswar never avoided or blamed women as the cause of man's downfall, because here we notice that he was involved with the women. So Yukteswarji never blamed a woman as the cause of man's downfall. He pointed out that women too have to face temptation from the opposite sex. I once asked Master why a great ancient saint had called women the door to hell. A girl must have proved very troublesome to his peace of mind in his early life. My guru answered caustically. Otherwise, he would have denounced not women, but some imperfection in his own self control. Worth pondering upon. So let's move on to the Hindi one. Over to you, Sunan. वे कहते थे, नींद में किसी को यह भी पता नहीं चलता कि वह पुरुष है या स्त्री। जिस प्रकार स्त्री का वेश धारण कर लेने से कोई पुरुष स्त्री नहीं बन जाता, उसी प्रकार आत्मा स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर लेने पर भी अपरिवर्तित ही रहती है। आत्मा ईश्वर का निर्विकार निर्गुण प्रतिरूप है। श्री युक्तेश्वर जी नारी को पुरुष के अधः पतन का कारण नहीं मानते थे, और न कभी नारियों को टालने का प्रयास करते थे। वे कहा करते थे कि नारी को भी पुरुष आकर्षण के प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। मैंने एक बार उनसे पूछा कि एक प्राचीन महान संत ने नारी को नर्क का द्वार क्यों कहा है। श्री युक्तेश्वर जी के ने तीखे स्वर में कहा, नव युवावस्था में कोई लड़की उसकी मन शांति में बाधक सिद्ध हुई होगी, अन्यथा यह नारी को नहीं बल्कि अपने आत्म संयम की अपूर्णता को दोष देता है। यदि किसी आगंतुक के विकारमयी बातों का संकेत भी देने वाली कोई कहानी आश्रम में बताने की दृष्टता कर ही दी, तो गुरुदेव उसकी ओर से ध्यान हटाकर मौन हो जाते थे। वे शिष्यों से कहते, सुंदर चेहरे के उत्तेजक चाबुक के प्रहार अपने ऊपर मत होने दो। इंद्रियों के दास जगत का आनंद कैसे ले सकते हैं जब वे वासना के कीचड़ में रेंगते रहते हैं? तो जगत के सूक्ष्म रसों का आनंद उनकी पकड़ में आता ही नहीं। वासनाओं में आसक्त मनुष्य का विवेक खो जाता है, उसे अच्छे बुरे का भेद भी नहीं चलता। ओवर टू यू, शीतल। जी, तो हम थोड़ा सा आगे निकल गए, बट इट्स ओके। सो यहाँ पे बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल एंड द फैक्ट अबाउट द सोल दैट इट हैज नो जेंडर, इट्स नीदर अ मैन नॉर अ वुमन। तो वो कह रहे हैं कि नींद में तो ये किसी को पता भी नहीं चलता कि वह पुरुष है या स्त्री। वी डोंट नो व्हेन वी आर स्लीपिंग, यू नो, दैट कॉन्शियसनेस इज जस्ट कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट अ मैन और अ वुमन। एंड जिस प्रकार स्त्री का वेश धारण कर लेने से, हमने कई बार देखा ना, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, कॉमेडी में, पीपल गेट ड्रेस्ड एज अ वुमेन एंड दे प्ले द रोल ऑफ अ वुमेन, बट इंटरनली दे डोंट चेंज इनटू अ वुमेन। यहाँ पे यही वो बोला गया है कि जब हम स्त्री का वेश धारण कर लेने से कोई पुरुष स्त्री नहीं बन जाता, उसी प्रकार आत्मा स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर लेने पर भी अपरिवर्तित रहती है। द सोल रिमेन्स न्यूट्रल even if the soul takes birth as a man or a woman in one lifetime. It keeps on changing, and every lifetime it might switch roles between a man and a woman. So the soul itself is still neutral. तो कोई भी शरीर वो धारण करती रहे, आत्मा अपने आप में वो आत्मा ही है। और कई बार हम गीता पढ़ते हैं ना, तो गीता में उसका वर्णन इस ढंग से ही दिया हुआ है कि आत्मा आ रहा है, आत्मा जा रहा है। वहां पे कई बार उसे स्त्रीलिंग बोला जाता है इन गीता। समटाइम्स इट्स रेफर्ड टू एज अ, you know, a feminine gender, sometimes it's referred to as a masculine gender. So in the description of Gita shloks, so that tells us कि आत्मा तो actually neutral है। आत्मा ईश्वर का निर्विकार निर्गुण प्रतिरूप है।
दैट इज सो प्रोफाउंड। अगर हम अपने आत्मा के रूप को ईश्वर के रूप के जैसा समझ ले, और समझ ले इट हैज नो फॉर्म, not even the qualities that this body possess. Atma is, the soul has so many superior qualities at the level of super consciousness. जैसे हम कहते हैं ना हमारा सब कॉन्शियस है, ऐसे सुपर कॉन्शियस भी होता है। सो अगर हम अपनी आत्मा का सुपर कॉन्शियस लेवल देख पाए और समझ पाए और उसको जी पाए, इफ वी आर एबल टू लिव दैट लेवल ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस, then we will not be trapped in these bodily desires. तब हम अपने शरीर से प्रेरित जो हमारे हरकतें और हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर्स, हमारी डिमांड्स होती हैं, डिजायर्स होते हैं, हम उन सब चीजों को काबू करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और श्री युक्तेश्वर जी ने नारी को पुरुष का अधपतन का कारण नहीं मानते। सो युक्तेश्वर जी नेवर ब्लेम्ड द विमेन फॉर अ मैन्स डाउनफॉल। दैट्स वेरी डीप, because he knows at the core, at the soul level, there is no man or a woman. We all are just souls. So how can he blame just the women or the feminine, tribe, the entire औरत जात को वो नहीं कह सकते कि आप मर्दों के पतन का कारण हो। उन्होंने ये ब्लेम कभी नहीं दिया। रादर आगे लिखा है, वे कहा करते थे कि नारी को भी पुरुष आकर्षण के प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। सो इफ इन अ फीमेल बॉडी द फीमेल विल ऑल्सो गो थ्रू सच डिजायर्स। पुरुष के लिए वो भी आकर्षित हो सकती है। शी कैन ऑल्सो गेट, प्रलोभन की यहाँ अगर बात कर रही है, शी कैन ऑल्सो गेट सेड्यूस्ड, और शी कैन ऑल्सो गेट lured by an attractive man, or a man who matches her intellect. Some people get the vibe, they get attracted towards an intellect of a person. Some people, they get attracted towards the body of the person, the physical appearance of a person. तो कोई इंसान आपस में, irrespective of whether a female gets attracted or a man gets attracted, but two people of opposite sex, definitely they get attracted to different levels of a person. कई लोग फिजिकलिटी पे अट्रैक्ट होते हैं, कई लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए अट्रैक्ट होते हैं, कई लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं, कई लोग इंटेलेक्चुअली कनेक्ट करते हैं। सो देर आर डिफरेंट लेयर्स, मगर कोई ना कोई अगर कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इट गोज सेम फॉर द मैन एंड द वुमेन बोथ, irrespective of who is getting attracted towards whom. So मैंने एक बार उनसे पूछ लिया कि प्राचीन महासंत संत ने नारी को नर्क का द्वार क्यों कहा है। So he got curious to understand why was the women labeled as or told as the door to hell. How come? Could you explain that? Then Yukteswar ji, in a very rough tone, he said, in तीखे स्वरों में उन्होंने बोला कि नव युवा अवस्था में कोई लड़की उसकी मन शांति में बाधक सिद्ध हुई होगी। मे बी ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड इन हिज यंग डेज। जब कभी वो बंदा अपनी यंग एज में इंसान वो रहा होगा, जिसने ये बोला है ना कि नारी नरक का द्वार है, ये उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर उस इंसान ने कभी अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड पाया होगा एक फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से, कि मैं तो ध्यान नहीं लगा पा रहा, मैं तो, जैसे कहते हैं ना आजकल के यंगस्टर्स को कि तुम इन चीजों में मत पढ़ना, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, इन चीजों में मत पढ़ना, विच मीन्स डू नॉट गेट ल्योर्ड बाय लस्ट. We do tell the teenagers not to get lured by lust. So similarly, Yukteswar ji is quoting the incident of the person who said that the women is the door to hell, must have gone through an experience where he might have got distracted by because of a woman. So उनके मन की शांति में बाधक सिद्ध हुई होगी कोई, अन्यथा वह नारी को नहीं बल्कि अपने आत्म संयम की अपूर्णता को दोष देता. Because had he been conscious, he would have blamed his own failure or incompleteness to not take charge of or not being in control of his senses. अगर वो अपने आप को ध्यान से देखता ना, जैसे हम लोग कहते हैं हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है, अगर वो इंसान अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करता तो उसे पता चलता कि ल्योर होने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, वो ल्योर हो रहा है इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो उस नारी को देख रहे होंगे लेकिन ल्योर नहीं हो रहे होंगे, अट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे, फिसल नहीं रहे होंगे और भटक नहीं रहे होंगे. यहाँ पे कह रहे ना कि मन की शांति में बाधक सिद्ध हुई. That same female might not have been an obstruction, an obstacle in many other people's path, but only in this person's path. That means there's something to do with his mentality. There's something that he couldn't control. Otherwise, the lady is in the environment for so many other men.
But not every person, not every man is getting distracted. The one who is getting distracted, जिससे नहीं अपने आप को कंट्रोल हुआ जा रहा, उसको अपने अंदर झांकने की जरूरत है. That person needs to reflect, in his own self. And Sunaina has read the Hindi version for this, but I'll take it up in English also once to just match. So, if a visitor dared to relate a suggestive story in the hermitage, Master would maintain an unresponsive silence. अगर अगर एक विजिटर, यानी कि यदि कोई आगंतुक ने विकारमयी बातों का संकेत भी देने वाली कोई कहानी आश्रम में बताने की धृष्टता कर दी, तो गुरुदेव उसकी ओर से ध्यान हटाकर मौन हो जाते थे. ही नेवर यूज्ड टू पे अटेंशन इफ समबडी यूज्ड टू. अगर कोई सुनने में भी आती थी ना कि इस तरह की बातचीत हो रही है, कोई किसी से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या कहीं कोई अपने मन से भटक रहा है, वो उसको इसलिए अटेंशन पे नहीं करते थे क्योंकि लोग अपने लीडर को फॉलो करते हैं. लोग देखते हैं कि वो किन बातों को अटेंशन दे रहे हैं. अगर आपका लीडर, अगर आपका गुरु इन बातों को इररेलेवेंट समझे, न्यूट्रल हो जाए इनकी तरफ, तो आप जब ऑब्जर्व करते हो ना और देखते हो कि यार इन्होंने तो इस बात पे तवज्जो ही नहीं दी, तो शायद ये बेवकूफों वाली बात है, हम ध्यान ना दें. जैसे मैं कहीं बैठती हूँ, वहां पे लोग ना पॉलिटिक्स बहुत डिस्कस करते हैं, एंड आई जनरली डोंट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, सो आई एम इनडिफरेंट टुवर्ड्स दैट टॉपिक, and finally I don't participate. So here also, when Yukteswar ji notices that somebody is talking about certain things which are not to be paid attention to, he would not uh, participate. Rather, he would maintain an unresponsive silence. मतलब शांति ऐसी कि मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं देना. I am not going to talk about it. So do not allow yourself to be thrashed by the provoking whip of a beautiful face, he told the disciples. अब यहाँ देखो, प्रोवोकिंग विप कितनी बड़ी बात कही है कि वो अपने डिसाइपल्स को कह रहे हैं, अपने शिष्यों को बोल रहे हैं कि अगर आपको चाबुक होता है ना, चाबुक, सो वो बता रहे हैं कि सुंदर चेहरे के उत्तेजक चाबुक के प्रहार अपने ऊपर मत होने दो. डू नॉट लेट दैट विप एक्चुअली हर्ट यू, हार्म यू. द विप ऑफ अ विमेन्स ब्यूटी, दैट्स द सिमिली और द एनोलॉजी गिवन हियर कि सुंदर चेहरा, लड़कियां तो सुंदर होती हैं. अगर आप देखो, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. इफ यू आर लुकिंग एट अ प्रिटी वुमेन एंड थ्रू दैट इंटेंशन दैट यू आर इन ऑ ऑफ हर ब्यूटी, अगर आप उसमें खोए चले जा रहे हो, तो भी उसको चाबुक की तरह मत अपने ऊपर प्रहार पड़ने दो. मतलब उसकी सुंदरता चाबुक की तरह आपको नहीं, जैसे वो टू एज स्वॉर्ड की तरह बात हो रही है कि लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, इट शुड नॉट हार्म यू. It can be used for your benefit, but not for your harm. So, इंद्रियों के दास जगत का आनंद कैसे ले सकते हैं? जब वे वासना के कीचड़ में रेंगते रहते हैं, तो जगत के सूक्ष्म रसों का आनंद उनकी पकड़ में आता ही नहीं. They do not know what exactly to be enjoyed from this life. So here it says, how can sense slaves enjoy the world? अगर आप अपनी इंद्रियों के स्लेव हो, इफ यूर अ स्लेव ऑफ योर सेंसेस, यू आर डेफिनेटली बीइंग ड्रिवन बाय देम. आप उससे ही ड्रिवन होके काम कर रहे हो. आप अपनी माइंडफुलनेस तो यूज ही नहीं कर रहे. you're not in control of your own conscious, or let's say super conscious mind. So its subtle flavors escape them while they grovel in primal mud. All nice discriminations are lost to the man of elemental lusts. All nice discriminations. So if we take it up in Hindi, वासनाओं के में आसक्त मनुष्य का विवेक खो जाता है, उसे अच्छे बुरे का भेद भी पता नहीं चलता. वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट यहाँ पे ये जैसे बताया ना, जब वे वासना के कीचड़ में रेंगते रहते हैं, तो जगत के सूक्ष्म रसों का आनंद उनकी पकड़ में नहीं आता. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू शुड फोकस ऑन, जहां आपका ध्यान जाना चाहिए. कितनी ऐसी चीजें हैं आसपास. Sometimes you might see a flower blossom, you might see a butterfly around you, you might see that there was a new pebble on the road that you always pass by. You always take that road every day. हर रोज आप उस रास्ते से चलते हो, मगर आज एक सुंदर सा वहां एक पत्थर पड़ा है, बहुत सुंदर सा. डेली अगर आप एक रास्ते से जाते हो, आज आपने नया क्या देखा. कितनी सारी चीजें हैं जिसपे आपका ध्यान जा सकता है. What new can I see on the same road today? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम सूक्ष्म रसों का आनंद नहीं ले पाते. वेरी लिटिल माइन्यूट
nectars of the life around us that we miss upon because our eyes and our senses are focused on something that they should not be driven by, for sure. They are needs, they are desires, that's fine. But you should not be, आपकी उन चीजों के प्रति ऐसी आकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसा inclination nahi hona chahiye that you are chained to them. You should never be chained to such things. आप उनके it should not be something कि इस बंधन को मैं तोड़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं खुद ही जूझ रहा हूं. आई एम नॉट एबल टू कट द चेन्स बाय माई सेल्फ. आई नीड somebody's help. I need a rehabilitation center. I need some psychologist. I need a psychiatrist. I need a therapist. That's the intensity when you are literally caught in those senses or the desires from these senses, and you're missing on little beautiful things of this world. Someday, imagine, did you actually notice the stars in the sky? Obviously, we can blame the pollution that we don't see any star, but try to find one. Try to find one. Or maybe for 15 days, just see how the moon changes its shape, the waxing, the crescent and the घटता हुआ चांद, बढ़ता हुआ चांद, आप वो देखो ना. आपको दुनिया की कितनी सारी चीजें देखने का मन करेगा और उनमें आप खो जाओगे. If even if you have to just lose your mind, not in the desires and lust and the sense driven things, you can get lost in so many other things that the nature has for us. It's only for us. It's for the living beings. All the non-living things around us are beauty. Everything has been shaped in a particular manner for us to reflect upon, ponder upon, see the beauty in it, notice what is it trying to tell me. आप पता है, अगर आप बेजान चीजों से बातें करना चाहो ना, you can talk to non-living things and they'll respond in a different manner altogether. आप कभी नोटिस करो कि आप एक टॉय को, एक छोटे से डॉल को भी अगर आप अपने सामने रख लो एंड उससे बातें करने लग जाओ, एक दिन आपको लगेगा ये आपकी बातों का जवाब दे रही है. ऐसा होता है आपके अंदर का बच्चा, ऐसा होता है आपके अंदर का चाइल्ड. दैट्स हाउ अ चाइल्ड इन यू इज. दैट व्हेन आई टॉक, व्हेन आई सी माय ओन kids, one is elder grown up but the younger one is 8, and I see her talking to her dollhouse, talking to the dolls in the dollhouse, and she would imagine that yes, they're participating. That's the beauty that the god sent us to. Okay, Dr. Beth, you found the right one. Yeah, so that's what we've read so far. Do we want to continue or do we want to reflect upon it, Tushar? I think it's yeah, 7:45, and we must have a 2 minutes of silent time, followed by sharing Sure. reflections. Yep. Okay. Thank you.
Hi. Welcome back, everyone. Let's have our sharing and reflections on this room. Thank you so much. Thank you, Sunaina, and thank you, Sheetal, for beautiful explanation and taking the lead today. Thank you so much. Yes, so we have good evening, Dr. Beth. Welcome back. I'm not sure how long or for how many sessions are you going to be here with us, but I'm always delighted to have you with us. And would you like to have your reflections for today's session? You're on mute, Dr. Beth. Please unmute. So I'd like to mention I'm back in Canada as of a couple days ago. And this is now morning, so I'm going to actually need to leave sharp at 8:30, so because I have to go to work. Okay. So yeah, but it's great to be here with all of you again. Pleasure to have you with us. Thank you. So there are two pieces that struck me in this reading. The first one is the soul is the immutable image of God, that the consciousness that creates everything that exists is beyond duality, despite the fact that everything that we perceive takes on a dual aspect, male, female, man, woman, hard, soft, all of those contrasts that we experience in this world. And we have judgments about those contrasting elements, our relationship to them, and how we respond to that which is different from us. Whether, the state of the woman being the gateway to hell is a reflection of the shortcomings of the person who was obviously making that statement, and how very important it is right now, especially in our world that is in such a high peak of, and certainly back in North America, it's really obvious, the divisiveness that seems to be growing, which I perceive as part of the birth of a state beyond the divisiveness. But in the meantime, as we are with these polarities that are so intense, how is it that we can remain in our own perspective, a state of simple awareness that this is the nature of reality in this moment, and to be detached rather than combative in relationship to those polarities, because that simply only adds energy to it. And perhaps even for those who are in that state of judging others and pointing fingers and in conflict, to in some way be able to see deeper into them, to the beyond their lack of self-reflection, to the part that can perhaps, when their soul is ready, to awaken to that state of awareness that's beyond judging others. But that requires such a state of not just awareness on our part, but perhaps compassion for the pain that they happen to be in, that is being projected out onto others as being the problem. So those are some of the thoughts that I have as from this little reading. Thank you. Beautiful. Thank you. I completely agree that the thoughts, when somebody look at the weakness within you, it's not your weakness which is reflected, something which is missing in the other person that gets triggered. And when it was discussed that, this woman is supposed, or even a woman is said to be the door to hell. It's not true, because it shows your lack of self-control. It's not that when we say that women is the door to hell, we should not take it literally. It shows if you lack that self-control in you, you surely be going towards hell if goes uncontrolled. So there is something which is missing in you that goes haywire, and you need to control and you need to take care of. So self-reflection or self-awareness is the key to go ahead or to move ahead. Thank you, Dr. Beth. Can Yes, I add something here, Tushar? yeah, please. Because I loved the word that Dr. Beth used, and I want to emphasize on that. She's she's used a beautiful word that means
We need compassion to understand the other person is in pain. This is profound. And that reminds me, Louise Hay book, the lady Louise Hay herself, who's authored the book, You Can Heal Your Life. अब ये वो लेडी है जिन्होंने एक बुक लिखी है यू कैन हील योर लाइफ, और उनके साथ ऐसी ऐसी कुकर्म हुए हैं, दुष्कर्म हुए हैं उनके जीवन में, उन्हीं के लोगों के द्वारा, मगर उनके अंदर वो भावना आई फॉरगिवनेस की कि ये इंसान जिसने मेरे साथ गलत किया, ये कितना पेन में होगा कि इसने मेरे को चुना अपना प्रे बनाने के लिए। तो उस लेवल ऑफ कंपैशन को उन्होंने एक्सरसाइज करके किसी को माफ किया। वो माफी देने वाला जो पॉइंट है ना, वो मुझे यहाँ याद आ रहा है। So, Dr. Beth, when you say that when somebody is in pain and you need to be compassionate towards that person, it reminds me of Louise Hay, who's authored the book You Can Heal Your Life, where she's describing about her instances in life when she had gone through many a big trauma, being attacked, or let's say being a prey of her own family members in terms of lust and everything. And she finally finds peace only because she could see the pain in them, that they chose her to be the prey. She could see that how much pain they are in, that they couldn't use their mind, they couldn't be judgmental about their own actions, and they couldn't stop themselves from doing that heinous act. And she forgave them. She after forgiving them, she found peace within herself. And then she wrote the entire book about where does these thoughts stay in your body and become disease. So कितनी बड़ी बात है कि अगर आप में वो compassion है, if you are compassionate, you can, instead of blaming that this person is choosing to do the wrong deed, imagine what this person is going through. Imagine वो किस तरह की दुर्दशा में अभी है कि उसे सही गलत का फर्क ही नहीं पता। ये तो उस पे पिटी करने की बात है। There's something to be sympathetic towards that person, that this person doesn't even know the right or wrong in life. The choice is gone zero. So we should be more compassionate towards them rather than being judgmental. I'm sorry, now that I'm speaking, I'll share my reflections also. Please go. This was, in continuation to her reflections. So I personally felt that this line is very worth pondering upon. How can sense slaves enjoy the world? How can sense slaves enjoy the world? अगर हम अपनी इंद्रियों के अधीन हैं, तो हम इस वर्ल्ड को, इस अर्थ को, इस प्लैनेट को एंजॉय कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और ही भटकेगा जहां होना चाहिए। जैसा मैं एग्जांपल्स भी दे रही थी, चांद सितारों और फूलों पत्तियों का, पहाड़ों का, पत्थरों का, हर किस्म का, तो नहीं जाएगा वहां ध्यान। आप रोज एक रास्ता पकड़िए और देखिए क्या क्या वहां कोई नया पौधा उगा है, क्या कोई नया फूल आ गया है। So you cannot enjoy the world if you are senseless. That struck me majorly. And yeah, there are so many other things, polarity and yeah, those things Dr. Beth has already covered. कि दुनिया में एक ही चीज है, that's energy. There's only one thing, that's energy. There's nothing like, man and a woman in regards to a soul. Soul is neutral and it's God-like, and it is a portion of God. It's ये अंश है भगवान का, और हम उस अंश को अगर पहचानेंगे तो हम खुद के अंदर के भगवान को जगा पाएंगे. We can, invoke the creator within us by understanding that we are a part of God, which means we have all the tools to manifest anything in our life, because God created us and he left that tool in our head for us to create further, and we are not mindful of that tool within our head. हमें पता ही नहीं कि उन्होंने हमारे अंदर वो औजार छोड़ दिए हैं, जिन औजारों से उन्होंने हमें बनाया. उन्होंने कहा जाओ धरती पे एंजॉय करो, सीखो कुछ, इवॉल्व हो, ग्रो करो और कुछ नया क्रिएट करो. और हम वो टूल यूज करना भूल जाते हैं कुछ क्रिएट करने का. जिस दिन हम क्रिएशन सीख जाएंगे, उस दिन हम एक्चुअली सर्विस टू सोसाइटी होंगे. जिस दिन हम क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ कंजम्पशन करते रहेंगे. वील ओनली बी द कंज्यूमर इफ वी आर नॉट क्रिएटिंग. Sorry, I had to cut short. Thank you. Thank you so much, Sheetal. Yes, Ashwinder ji, over to you. जी, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी डॉक्टर वैद ने. और वही जो आप कह रहे हैं कि सब कुछ एनर्जी है जी. ओनली वन थिंग व्हाट वी हैव रेड समवेयर, कि जो लेडी है, जो एक फीमेल है, उसको हम गंदा या गलत क्यों कह सकते हैं? बिकॉज सारी क्रिएशन उसी के द्वारा आई हुई है, क्रिएशन ही उसी से हो रही है.
और सो क्यों मंदा आखिए जिस जन्मे राजान, जिन्होंने किंग्स को जन्म दिया है उसको हम कैसे गलत कह सकते हैं। जो उस बच्चे को पालने के लिए माँ की जरूरत है, उस बच्चे को बड़ा होते तो दोस्त की जरूरत है, तो वो एक फीमेल को लेता है, फिर मैरिज उससे कराता है, फिर वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर एक और फीमेल के लिए जाता है। तो हाउ कैन वी से रॉन्ग टू दैट फीमेल। तो सो क्यों मंदा आखिए जिस जम्मे राजान, किंग्स एंड डिक्टेटर्स एंड ऑल गुड हाई पीपल, मतलब उसको हम कैसे गलत कह सकते हैं। सो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी इसमें, तो आई जस्ट थॉट आई विल शेयर विद यू। Yes, thank you. Beautiful. जी, Thank you so थैंक यू। much, Shweta ji. Yes, yes. Anyone else who would want to share their beautiful reflections in today's platform? Sunaina? One more thing struck me, I'm sorry. Yeah, please. I'm barging in. Ashwinder ji ne kaha that how can we blame a woman who's the creation, who's the creator? Everyone, man at every stage of his life needs a woman in different forms. I am also willing to emphasize on the feminine energy within a man. Now, the man is a provider and the man is going out for, to work. Man is going out to work to raise a family. Now, what part उसका अंदर का कौन सा हिस्सा उसे रेज करने को कह रहा है, उसके अंदर का nurturer. The feminine aspect of a man is asking him, is allowing him to go out and earn, to be able to raise the family, to be able to become a provider. It's not the masculine aspect in him, it's the feminine aspect in him. हर इंसान की फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज होती है, जो हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी के भी बारे में अगर कोई जानता हो तो होती हैं। और वो बैलेंस जहां होता है वहां हम लोग कामयाब होते हैं, हम अपनी इंद्रियों को भी वश में कर पाते हैं। तो जब एक इंसान, एक आदमी खास तौर से एक औरत को कहता है कि ये नर्क का द्वार है, इफ दैट इज द केस, देन वो भूल रहा है कि वो जिस फैमिली को रेस करने के लिए रोज निकलता है ना, उस फीलिंग को उसके अंदर फेमिनिन एस्पेक्ट कहा जाता है। ये उसके अंदर का नर्चरर है, फेमिनिन एस्पेक्ट है जो उसे कमाने भेज रहा है। उसके अंदर का जो मैन एस्पेक्ट होगा वो उसे काम करने के तरीके और स्किल्स और स्ट्रेंथ यूज करने देगा। लेकिन उसकी जो इच्छा जाग रही है ना, वही बात आ गई यशविंदर जी वाली क्रिएशन की, कि मुझे ये जो क्रिएट करनी है पॉसिबिलिटी टू बी एबल टू अर्न, वो क्रिएशन वो कर पा रहा है अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी की वजह से। तो वो इंसान, वो मैन भूल रहा है कि उसके अंदर भी फेमिनिन एनर्जी है, और तब वो गलत बोल जाता है। Right. Thank you. Thank you, Sheetal, for adding up to Ashwinder ji's words. Beautiful. Yes, Dr. Yogini, Sunaina, would you like to share your reflections or thoughts? May I? Ji, Yogini ji, please go ahead. What I could gather from this is that everything in the universe is created by God. So there is beauty and reason for everything's presence. Nothing is there without a reason. हर चीज की जरूरत है. It is for us to see कि उसको हमने कैसे लेना है और कितना लेना है. In case we are taking a thing in excess, that is not in a righteous way, that is wrong. Be it money, be it sex, be it power, be it anything else. If things done in a balanced way and in the right, correct way, correct means like uh, low, I mean lust or greed, even that is good if done with the person or like in a correct way, in a measured way, in a balanced way, that is correct. Otherwise, we won't be here. We all wouldn't be born. So money also is good. That is one that is done without harming anybody, and one that is required for our sustenance. Because greed has no boundary. We can be greedy to an extent that we want to be a billionaire. We want to be the richest person on the earth. But what will that, when will that greed end? What is the end result? Nothing. Everything will be left here in this earth while we will go back from where we came. So everything has a reason. I believe that nothing is incorrect, only that we need intellect to see how much is required, how much is justfully required for our sustenance. That is the correct way of living.
That's Thank you. Thank you, Dr. Yogini ji. हाँ, हाँ, beautiful. Yeah. I want to add up a few lines here. Like जैसे अभी शीतल ने बताया, लुइसे का एग्जांपल दिया, तो लुइसे जब अपनी हीलिंग जर्नी पर थी तो शी वाज बीइंग लाइक, उससे पहले शी वाज बीइंग रेप्ड बाय हर स्टेप फादर, not even once, like time and again and many times. And she got cervix cancer also because of that, because of the wound that she carried, emotional wound that she carried for a long time. And when she got into that healing, that when she got a mentor who explained her about the situations. And the man was also, I mean, her father was also looking for, I mean, she got to know about it, like her father was also looking for love while doing that rape. तो जब उनको ये पता चला कि मतलब डेफिनेशन ऑफ लव कैन बी डिफरेंट, आई मीन इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. आपके लिए लव की डेफिनेशन कुछ और है, मेरे लिए लव की डेफिनेशन कुछ और है, और जो रेप कर रहा है एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन भी लव की ही है. वो कहीं ना कहीं वो प्यार ही ढूंढ रहा है. अगर उसकी डेप्थ में जाया जाए तो वो बताती है अपनी बुक के अंदर, और बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि I mean, he was not at fault. Like the kind of society he got into, and the kind of like meaning he got into, nobody educated him what is the real meaning of love actually. So that was his conscious awareness about that love. And because of that, like she became a very big healer because of that wound that she carried in herself. And कहीं ना कहीं उनकी मेंटर ने जब ये पूरा उनको लेके गए, डेप्थ में लेके गए कि उसके नीचे एक्चुअल में अगर वो रेप कर रहे थे तो वो एक्चुअल में रेप नहीं कर रहे थे, वो प्यार खोज रहे थे. सो ये मेरे लिए बहुत ही एक अलग पर्सपेक्टिव था. मतलब जब मुझे ये पता लगा कि मतलब इसको जब ढूंढने और जानने की कोशिश करते हैं तो ये वाकई में एक बहुत ही मतलब मेरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया एक्चुअल में काफी हद तक. और मुझे ऐसा लगा कि मैं हर चीज को कंपैरिजन करने लगी. मतलब मेरा कंपैशनेट होने का एक सबसे बड़ा कारण लुईस ए को समझना और उनकी बुक्स में जो भी लिखा है उनको पढ़ना भी है. शी इज ऑल्सो very very big contributor in my life, that I became a bit of compassionate person, you can say. Because मुझे ऐसा लगा कि जब वो मतलब माफ कर सकती हैं अपने रेपिस्ट फादर को, while knowing the facts and realizing like she was that much educated only, and वो एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ मतलब वो what exactly he was looking into me, into that activity or act, या जो भी whatever you may call it. So बहुत मुश्किल रहा होगा. तो मुझे ऐसा लगता है हमारी लाइफ में तो छोटे छोटे इमोशनल वूंड्स हैं और वही कितने बड़े हम ले लेके घूमते रहते हैं. एंड मतलब कैसे उन्होंने रिकवर किया होगा और कैसे मतलब एनकाउंटर हुए होंगे, मतलब जो हीलिंग जर्नी पर उनको मतलब कितना मतलब माफ करना उनके लिए इजी नहीं रहा होगा. बट जब माफ किया होगा तो जैसे शीतल ने बताया कि मतलब शी गॉट रिलीव एंड शी गॉट पीस विद इन. जैसे उन्होंने छोड़ा, मतलब इस चीज को लेट गो करना सीखा उन्होंने. तो आई थिंक these are the lessons that we are learning from Yogananda ji's life as well, and the mentor is explaining like it is the perception that we actually build. एंड हमारा जो नजरिया होता है वो बहुत छोटा होता है समझने के लिए. कई बार तो जैसे जैसे हम ऐसी चीजों को सुनते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव ब्रॉडर होने लग जाता है और हम और गहरे और डेप्थ में आई थिंक चीजों को जानने लग जाते हैं. तो मेरे लिए भी इस चीज को डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल था जब मैं इस चीज को समझने की कोशिश करी थी. बट येस, व्हेन आई अंडरस्टूड इट, और उसको जब मैंने पूरा डेप्थ में जाकर के समझने की कोशिश की तो समझ में आया कि व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. तो आज के चैप्टर में भी मुझे यही समझ में आया कि मतलब ये पर्सपेक्टिव ही है बेसिकली. मतलब जब वो गुरुजी ने एक्सप्लेन किया, मेंटर ने एक्सप्लेन किया कि मतलब कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, इट इज जस्ट एनर्जी. वो बॉडी अलग अलग ले रही है. मतलब वो अ बॉडी वांट्स टू हैव एक्सपीरियंस while being a lady, while being a feminine energy, while being a masculine energy. और शीतल ने बहुत ही अच्छे से ये भी बताया, she put some light on that, like there is always nurture your abilities and skills that feminine side the male is also carrying. And without that he will also not go for that build that skill basically. तो I think एक lady भी अगर काम कर पाती है या वो masculine energy को develop कर पाती है तो वो feminine aspect ही है जो अपना activate करती है. So this is all about like activating our energies और अंडरस्टैंडिंग आर एनर्जीज की हम फेमिनिन साइड की
हमें कितनी ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, और मैस्कुलिन को हमें कितना डेवलप करना है, बिकॉज आई ऑल्सो गॉट into masculine energy many a times, and I realized that I forgot the role of a nurturer. So I think we also need to like bring our life into certain kind of balance, and this is a practice that we need to learn and imbibe, and वो एक दिन में नहीं आता है, वो practice करने से ही आता है, acknowledge करने से आता है, और सीखने से आता है, गलतियां करने से ही आता है. तो we must forgive ourselves also whenever we commit any mistake. Yeah, thank you so Thank you much. so much. Thank you so much, यहाँ पर एक बात आप लोगों को दिखी, यहाँ पर एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, मैं कहानियां जो पढ़ी हैं वो यहाँ पर इतनी काम आती है कि एक नर्तकी थी, मतलब एक कोटे वाली, और एक पुजारी था. जब वो मर के स्वर्ग में गया तो एक पुजारी को नर्क मिला और नर्तकी को स्वर्ग मिला. तो इसका मतलब यही था कि उसकी एनर्जी, मतलब वो कहती, मतलब ये दिखाया था भगवान ने कि वो काम ऐसे करती थी पर उसके दिमाग में इतनी बात नहीं थी. तो यही बात है कि हमारी एनर्जी के ऊपर है, हम कुछ भी कर रहे हैं पर हमारी एनर्जी अगर उसमें उसमें घुस गई, नेगेटिविटी आ गई तो हम गलत है. अगर हम पॉजिटिव में रह के कर रहे हैं तो हमारी वो नेगेटिविटी भी पॉजिटिव हो जाती है. यहाँ पर यही बात आ रही है इस पूरी. और एक पुजारी की एक एक कहानी तो आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ी होगी, यूनिवर्सिटी और पुजारी की तो कहानी आपको पता नहीं हो, पर दो ब्राह्मण जा रहे थे अपने, दो गुरु के शिष्य जा रहे थे, तो एक लेडी डूब रही थी तो एक साधु ने उसे बचा दिया. आप जोड़ना उसको, एक साधु ने उसे बचा दिया. दूसरा साधु क्या नाम है, वो साधु फिर चलने लगा. दूसरा साधु इस बात को दिमाग में लेके बैठ गया और जब वो आगे जाके बोला कि मतलब हमें किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आना था, तुमने उसको बचाया. तो उसने कहा तुम हो उसके संपर्क में, मैंने तो उसे अपना काम करके छोड़ दिया और तुम वहीं अटक गए. तो यही है हमारी बात यहाँ पर, आप समझो. यही वाली कहानी है, बिल्कुल फिट हो रही है. वो वाली नर्तकी वाली भी तो आपको पता नहीं पड़ी हो, ये कहानी अब फिट हो रही है कि मतलब हम एनर्जी, किस एनर्जी में रहते हैं ये हमारे ऊपर है. वक्त हमारे पर बहुत आते हैं पर हमारी एनर्जी, यही है कि हम सांसारिक है इसलिए हम हट नहीं पाते, नेगेटिव एनर्जी से कम हट पाते हैं. अब क्लासेस में है तो थोड़ा सा समझने लगे हैं, फिर भी एनर्जी के ऊपर होता है इंसान की. Thank you, Bhumika ji, for sharing your thoughts. Beautiful sharing. Is there anyone else who would want to share before we wind up with the concluding prayer? I think, shall we wind up today? मुझे एक चीज याद आ रही है, इफ आई मे. जी. पहली बात तो ये दोनों स्टोरीज मैंने सुनी हुई है, भूमिका जी ने जो बताई, बहुत ही अच्छी स्टोरीज है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. मतलब दिल खुश हो गया इन्होंने इसको याद दिलाया, जो कहानी को, कि हम उस चीज को याद करके बैठे हैं उसमें अभी तक. वही ना, कितनी देर आपने गिलास पानी का पकड़ा हुआ है वो उतना हैवी है. सेम सेम एग्जाम्पल, कि ज्यादा देर आप पकड़ के बैठोगे तो आपको दुख होगा ही होगा. कल मैं ना एक कोई वीडियो देख रही थी और मुझे लग रहा है कि वो बताना बहुत जरूरी है. उस वीडियो में वैसे तो कोई साइकिक थी जिनका इंटरव्यू हो रहा था, एक पॉडकास्ट था. बहुत कोई मानी हुई साइकिक है, मंजीत करके, उनका एक पॉडकास्ट था जिसमें उनसे पूछा जा रहा था कि अगर आप लोगों की पास्ट लाइफ्स में जाते हैं या आप सोल से भी कनेक्ट करते हैं और आप आत्माओं से बात कर पाती हैं, तो आपको क्या लगता है निर्भया जैसे लोगों को क्या मुक्ति मिली? और निर्भया के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी पास्ट लाइफ क्या इतनी कभी गलत कर्मों की रही होगी कि उसको ये भुगतना पड़ा? आप जवाब सुन के हैरान हो जाएंगे. मैंने उस जवाब की उम्मीद नहीं की थी. मुझे लगा था कोई जनरल जवाब होगा, कुछ कुछ भी हो सकता था, बट ये नहीं जो मैंने सुना. एंड दैट ब्लू माई माइंड, इट जस्ट ओपनड अप माई ब्रेन. सो जवाब वो साइकिक ये बता रही हैं कि कुछ लोग वो इतने प्योर सोल्स होते हैं, इतने प्योर और एलिवेटेड सोल्स होते हैं कि वो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम धरती पर जन्म लेंगे और अर्थ की कॉन्शियसनेस लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम अपने ऊपर अत्याचार एक्सेप्ट करेंगे. शी वॉज वन ऑफ दो सोल्स जो शायद प्लैनेट अर्थ की थी भी नहीं. ऐसा कहते हैं ना कि बहुत धरतियां हैं, बहुत पैरेलल यूनिवर्सेस है और बहुत कुछ है. स्टार सीड्स आते हैं, यहाँ जन्म लेते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं. गुरु नानक देव जी को कहा जाता है वो भी शायद स्टार सीड ही थे ना, अचानक मतलब कहाँ लुप्त हो गए किसी को नहीं मालूम. सो ये जो निर्भया जैसी एग्जाम्पल है ना, जहां हमारी पूरी की पूरी
कौम को झंझोड़ देने वाला जब काम होता है, तो ये वो आत्मा होती है जिसने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली थी कि पूरी कौम की सोच को हिलाने का काम मैं करूंगी। अब उसके लिए आप जीसस का एग्जाम्पल लीजिए। जीसस को क्रॉस पे लटकना पड़ा ताकि पूरी कौम का दिल दहल जाए कि ये क्यों हुआ, ये क्या सीखने को मिला हमें, ये वो जो भी है। जब पूरी कौम को हिलाने लायक, रूह कांपने वाली अगर कोई घटना हो रही है, तो वो पूरी कॉम की कॉन्शियसनेस लेवल को, अवेयरनेस को अपलिफ्ट करने का जब काम करती है, तो वो जो सोल है ना, वो भुगत के नहीं गया, वो दे के गया। वो सोल भुगता इसलिए क्योंकि उसने एज अ लाइफ प्लान ये चूज किया होगा। कई जगहों पे नहीं भी किया होगा, आई अग्री, लेकिन जो इस लेवल की घिनौनी और इतनी बुरी तरह से जिसके ऊपर कुछ बीता है, मतलब आप, ऑब्वियसली हम सबने सुना उसका केस और रोंगटे कांप जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो उस लेवल का घिनौना क्राइम तो कोई कोई संत ही होगा जो चूज करके आया होगा, कोई संत ही होगा। तो वो एक सोल की, आप सोचो सोल उस समय जब चूज करता है ना, वो उस समय भी जेंडर में नहीं होता, ना मैस्कुलिन ना फेमिनिन, सोल न्यूट्रल है। जब उसने चूज किया कि मैं इस चीज से गुजरने को एक्सेप्ट करती हूँ ताकि पूरी कौम की अवेयरनेस जागे और औरतों के प्रति लोगों का नजरिया जागे। अगर वही औरत के लिए कोई इंसान कह रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे इसलिए नर्क का द्वार है, वही औरत आपको बहन या बेटी क्यों नहीं दिख रही? वो आपको लस्ट का और इच्छा पूर्ति का साधन क्यों दिख रही है? यहाँ पे ये अवेयरनेस जगाने के लिए इस तरह के वाक्य होते हैं हमारे इर्द गिर्द और हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। बातें कहीं से कहीं घूम जाती है सोसाइटी में कि पहनावा और बोलचाल और आजकल का मॉडर्नाइजेशन, दैट्स ऑल सेकेंडरी। द फर्स्ट थिंग इज, आर यू कंपैशनेट टुवर्ड्स दैट पर्सन? क्या आपको उस इंसान के प्रति प्यार या अच्छा भाव आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो आप उसका नुकसान कर ही नहीं सकते। मतलब अगर, वही बहुत ही एक और एग्जांपल है कि अगर आपको फूल प्यारा लग रहा है, तो अगर आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर लाइकिंग इट, यू विल प्लक इट एंड स्मेल इट, टेक इट विद यू। आपको फूल अच्छा लगा, आपने तोड़ा, आप ले गए अपने साथ। लेकिन अगर आपको उस पे वाकई में ही प्यार आ रहा है, तो आप उसे और पानी देंगे, उसे और नर्चर करेंगे, उसे दर्द देंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं। जी भूमिका जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप म्यूट हो गए, सॉरी। भूमिका जी, आप म्यूट पे बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरे हिसाब से हर महिला टॉर्चर हुई होगी, में टॉर्चर होती ही है, कुछ नहीं तो टॉर्चर होती है। तो वो टॉर्चर को ही, आपका कहना सही है कि टॉर्चर को ही, मतलब मोनिका, एक तरह से महिलाओं का सम्मान के लिए भी ये हुआ कि मतलब एक आत्मा को आवाज बड़ी संकर लो आ किया रही है कि अगर भूमिका ऐसा जी। होगा तो हम्म। ऐसा होगा। मतलब मर्दों को सबक मिलना चाहिए कि, आपने सही कहा कि मतलब कि मानव जाति में मर्दों को भी थोड़ा कभी कभी सबक मिलना चाहिए। ऐसे कांड इसलिए होते हैं। थैंक यू। Yeah. Thank you, शीतल. Yes, योगिनी जी. मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो फॉरगिवनेस की बात आई ना, जब हम फॉरगिवनेस किसी को मन से करते हैं, हमारी इंटरनल हीलिंग शुरू ही तब होती है, एक्चुअल इंटरनल हीलिंग। उसके पहले हीलिंग शुरू ही नहीं होती। आई एग्री कंप्लीटली, और किसी को कंप्लीटली। एक्चुअल में किसी को हम माफ करते हैं ना, क्योंकि हम एक, हमारे आसपास एक ऑरा रहता है। और हम जब किसी को माफ करते हैं या हमने किसी के मन प्रति मन में द्वेष है ना, तो हम उसको कांस्टेंट सिग्नल देते हैं, सामने वाला भी फिर वैसा ही रिएक्ट करता है हमारे साथ। बहुत बार होता है हम किसी से गुस्सा होके बैठे हैं, तो हम कहते हैं वो हमें फोन करे, और वो होता नहीं है, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी वो नेगेटिव सिग्नल्स दिए होते हैं कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी। द मोमेंट वी इंटरनली से टू अस आवरसेल्व्स, और मैंने ये रियलाइज किया खुद से, मेरे साथ हो चुका कई बार, जब हम अपने मन में कहते हैं ना चल छोड़ ना, माफ किया, तू मेरी फ्रेंड है, द मोमेंट वी रिंग गिव अ कॉल टू दैट पर्सन, उस बंदे का रिएक्शन होता है, अरे वाह, मैं तो सोच ही नहीं थी तुझसे बात करने की। और किसी के प्रति अगर हम द्वेष रखते हैं, तो इंटरनली कोई ना कोई फंक्शनल डिसऑर्डर होना शुरू, मैं तो अब एज अ डॉक्टर बता रही हूँ, इंटरनली कुछ एज अ, मतलब जब हम कोई किसी के प्रति मन में द्वेष, ईर्ष्या या हेट्रेड रखें, कुछ भी फीलिंग नेगेटिव रखें, तो हमारे मन में फंक्शनल लेवल पे, यानी हमारे बॉडी के सिग्नल, चाहे हमें वो स्वेटिंग होने लग जाए, चाहे हमें घबराहट रहने लग जाए, चाहे हमें सपने गंदे आने लग जाए, चाहे हमें
हम डिप्रेस्ड फील करने लग जाएं, तो ये सारा कुछ एक फंक्शनल लेवल पे रहता है। बट देन डीपर डीपर जैसे हमारी वो द्वेष और एंगर और हेट्रेड हो जाएगी, तो वो स्ट्रक्चरल लेवल पे होके कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम एस्थमा हो जाएगी, चाहे वो हार्ट में हमें पता चलेगा कि ब्लॉकेज होनी शुरू हो गई है, चाहे किडनी में स्टोन बन जाएगा। और ऐसे मैंने कई हीलर्स देखे हैं जो उस बीमारी को इस लेवल पे ट्रीट करते हैं। वैसे जब मेरे पास कोई आता है, मैं मेडिसिन के साथ उसको ये सारी थेरेपीज देती हूँ। उसको मैं, यही मैंने शायद आगे भी बताया था, मैं सजेस्ट करती हूँ कि जो भी नेगेटिव फीलिंग किसी के लिए है, उसको पेपर पेन राइट इट डाउन and just tear it or burn it. The moment they do, they come and tell me the next time कि हमने ये किया था और हमारी वो फीलिंग खत्म हो गई, बिकॉज इंटरनली लगता है हमने ये चीज करी, जैसा किसी के मन में, और या मैंने तेरे साथ ये किया, चलो गुस्सा था इधर उधर का, बर्न कर दिया, एंड इंटरनल हीलिंग शुरू हो जाती है। बिकॉज मेडिसिन कैन हेल्प, बट बंदे को खुद अपनी कोशिश करनी होती है कि मैं हील होने के लिए रेडी हूँ। वो होती ही तब है व्हेन दैट पर्सन डज फॉरगिवनेस और माइंड अपना योगी क्लीन स्लेट करे। योगिनी जी, वो हाँ होती जी। इसलिए तब है क्योंकि यूनिवर्स में मिरर न्यूरॉन्स हैं। जैसे हम आमने सामने किसी के बैठते हैं ना, हम उसका हाव भाव कॉपी कर लेते हैं और कहते हैं ना हम रैपो बन गई। आप ऐसे बैठे हो तो मैं भी थोड़ी देर बाद देखूंगी कि मैं भी ऐसे ही बैठी हूँ। ये मिरर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में काम करते ही हैं। सेम चीज मैंने पढ़ा है कि यूनिवर्स में, कायनात में, इस एनर्जी में मिरर न्यूरॉन्स है। जैसे ही आपने हीलिंग की एनर्जी पकड़ी, उसने भी पकड़ ली, तो उस बंदे तक टेलीपैथी कैसे पहुंचती है? इन सिग्नल्स की वजह से, क्योंकि वो मिरर न्यूरॉन्स पहले यूनिवर्स ने पकड़े हैं कि आपने वाक्य में ही दिल से माफ किया है और आप हीलिंग पे जाना चाह रहे हो। ये एनर्जी वहां तक पहुंचती है, उनको मिलती है, तो वो पता लगा पाते हैं कि हाँ शायद मेरा भी दिल कर रहा है बात करने का। तो ये मिरर न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। एंड आई थिंक द टाइम इज और अप, फिर सॉरी। दूसरा, और फिर जो सामने वाला जना है ना, वो भी कहता है कि हाँ मुझे भी लग रहा था कि मेरी भी गलती है। म्यूचुअल होता है, Then you हाँ। mutually you can forgive and forget. पहल कौन करे, और लड़ाई तो ये उस बात की है ना, फॉरगिवनेस जो का एक पहल सेकंड करेगा स्टेप वो है, है। फॉरगेट, डोंट ब्रिंग योर पास्ट। कि माफ करने वाला बड़ा होता है, एक्चुअली हमारी ईगो है जो हमें रोक के रखती है, दैट वी शुडंट बी द वन हु इज इनिशिएटिंग। बट आई फील इफ even if you are the not the doer, wrongdoer, and if you initiate, it brings you to a higher level, closer to the god. मुझे तो ऐसा कांटा लगता है। आपको चुभ रहा है ना, कांटा आपको चुभ रहा है तो पहल आप ही हाँ करो। अगर हीलिंग आपको हाँ चाहिए तो बिल्कुल। कांटा आपको चुभ रहा है। जिसको कांटा चुभ रहा हाँ है उसे पहल करनी चाहिए। अगर दुख का कांटा चुभ रहा है कि यार वो मुझसे नहीं, बात नहीं लेकिन हो रही, शीतल जी, तो ईगो नहीं आती, कांटा चुभता है तब। एक चीज है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ, पुरानी बातों को भूल जाओ, मिट्टी मतलब डालो। फॉरगिव एंड फॉरगेट। यू शुडंट ब्रिंग द पास्ट थिंग्स अगेन। अगर सिचुएशन सिमिलर भी आ जाए ना दोबारा उसी जने के साथ, तो कभी भी पुरानी चीजों को दोबारा नहीं लाना चाहिए, बिकॉज फिर वो बिटरनेस बहुत ज्यादा लेवल की हो जाती है, एंड दैट कैन बी हील्ड अगेन। फिर हम वो जख्म को कुरेदते हैं बार बार। हम एक्चुअली जब तक एक हम अपने जख्म को पैटर्न हीलिंग, से सीखेंगे नहीं ना, जब तक हम पैटर्न से सीखेंगे नहीं, यूनिवर्स बार बार हमें उस सिचुएशन में भेजता है कि अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स चेंज नहीं हो रहा तो फिर लो ये सिचुएशन। अगर नहीं चेंज हो रहा फिर लो ये सिचुएशन। और आप कहोगे मैं कितनी बार इसे माफ करूं, आप माफ कर ही नहीं रहे हो, आप अपना रिस्पॉन्स बदल ही नहीं रहे हो। अगर आप अपना रिस्पॉन्स बदल पाओगे जिस दिन, उस दिन से वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा और हम उसी माया चक्र में फंसे हुए हैं। हम या तो पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, अवेयरनेस में नहीं है, और अगर अवेयरनेस आ जाती है तो भी कहीं ना कहीं हम अपने सेंसेस की वजह से ईगो में है कि हम पहल नहीं करेंगे। अगर हम पहल भी कर रहे हैं तो हम नया रिस्पॉन्स नहीं चूज कर रहे। और जब तक हम नया रिस्पॉन्स चूज नहीं करेंगे, पुराना इवेंट, पुराने रिश्ते भी, कहते हैं ना मुझे हर बार रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, पर इसी तरह का बंदा मेरी लाइफ में क्यों आता है, इसी तरह का घाव देके क्यों जाता है, इसी तरह की मेरे को तकलीफें क्यों आती है, पैसे की भी मान लो, इसी तरह से मेरे काम क्यों नहीं चलते। वो क्योंकि आपने पिछली सीख का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, आपने लेसन लर्न आए मगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना भूल गए। सो हमें वो पैटर्न ब्रेक करने के लिए डिफरेंटली बिहेव करना जरूरी है। तो दैट इज ऑल्सो वन लर्निंग। कहते हैं, ये कहते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आइदर वी विन और वी लर्न फ्रॉम Yeah, we never lose. There That's is right. never a failure. It's always a feedback. Never. इट।
Yeah, Over to you, win-win. Tushar. Good I conversation. Thank I you. won't add up anything because you both of you have beautifully summarized everything, that it's all it's, I mean, energy is the game changer. When you start working on the energy, if it's a healing energy or any energy, the universe starts working for you. तो जैसे जैसे आपने कहा कि आपने अगर उसको सिग्नल ही नहीं दिया, आप खुद ईगो में अहंकार में, तो पहले आपको मेलो डाउन खुद पे करना है ना, तभी दूसरा पर्सन रिस्पॉन्ड करेगा, एंड इट्स गुड, इट्स ब्यूटीफुल। एंड लाइक योगिनी जी सेड कि जितने भी चीजें हैं, जब इनके पास पेशेंट्स आते हैं तो वो दवाई तो देती देती है क्योंकि वो फिजिकल लेवल पे काम करी, बट अंदर जिस वो जो रूट है वो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, तो वो बहुत जरूरी है उनको रूट आउट करना। सो देर आर डिफरेंट टूल स्ट्रेटजीज टू डू। वन ऑफ देम इज लाइक राइटिंग इट डाउन एंड टीयरिंग इट ऑफ एंड जस्ट पुटिंग इट इन द बिन, या उसको जला दो। ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हीलर्स और दोज हु आर इनटू दिस इंडस्ट्री दे लाइक टू इम्प्लीमेंट इट ऑन देयर पेशेंट्स या उनके क्लाइंट्स पे वो इस्तेमाल करते हैं। और I think हमने भी अभी, since we have also started learning and we are in, I personally say like I would be a novice, I'm at the beginning stage, और मुझे लगता है कि बड़ी लाइफ लॉन्ग जर्नी है अभी, बहुत कुछ सीखने वाला है। थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत थोड़ा सीखा है, लेकिन वो बहुत बहुत ब्यूटीफुली काम आ रहा है, एंड वी मस्ट ऑल लर्न। और एक चीज जब सुनैना बता रही थी तो मेरे को वही लुई हे के केस में, और अदरवाइज आपने शीतल ने बोला कि क्या था दैट गर्ल्स नेम, निर्भया, निर्भया, Nirvya. निर्भया के, तो मैं मेरे दिमाग में चल रहा था कि द वर्ल्ड एंड वी एज अ ह्यूमन बींग्स आर सो डिप्राइव्ड ऑफ लव, कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस। तो उसको कहाँ से हम अपने उसको ना लेने के लिए क्या क्या गलत हीनियस वेज अडॉप्ट करते हैं। आई मीन ह्यूमंस, दिस इज नॉट राइट। और अगर ये एक स्कूल प्रिलिमिनरी लेवल पे भी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, मतलब गर्ल एंड बॉय दोनों को, ये स्कूल मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार लव, कंपैशन, एक्सेप्टेंस, ये जो वर्चूज हैं ये बचपन से बच्चों को सिखाए। एज अ पेरेंट्स भी हमें शुरू करनी चाहिए, एज अ टीचर स्कूल में शुरू इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, हर जगह ये सिखाई जानी चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिजिकल लेवल पे तो चीजें बाद में आती हैं, पहले इमोशनल लेवल पे सारी गेम प्ले हो रही होती है, सारा खेल ही वहीं से शुरू हो रहा था, तो वहां पे वी मस्ट स्टार्ट वर्किंग। और आई थिंक क्या कहते हैं कि जो भी चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अपने आप से लेट्स जस्ट टेक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप से शुरू किया जाए, वो बहुत अच्छा है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन के जो सब लोग हैं यहाँ पे, वो इसीलिए है क्योंकि हम लोग काम करना चाह रहे हैं अपने पे, वी आर विलिंग समवेयर 1%, 2%, 10, 50, 60, कोई अलग अलग परसेंटेज पे, बट वी ऑल आर रेडी टू वर्क ऑन आवरसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। So beautiful, and thank you, Sheetal. Thank you so much. Thank you, Sunaina. Thank you, My Yogi. pleasure. Thank you, Thanks to Bhumika all ji. of you. एक Thank लाइन you, ऐड Sunil. करूं? Just one line. वन लाइन। एक्चुअली जो ये सारी क्राइम्स वाली प्रॉब्लम है ना, somebody has gone into the depth of that। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो मदर ने अपने बच्चे को प्रॉपरली फीड नहीं किया होता, या उसको एक घृणा की तरह या समझो निग्लेक्ट की तरह डिप्राइव्ड रखा होता है, दैट बॉय ग्रोज टू बी समथिंग लाइक दैट। Right. Again, deprived of these values. आपकी ना आवाज कट की थी, बट जो कुछ समझ आए मैं थे, ये कह रही हूँ डिप्राइव्ड ऑफ motherly love, मदरली affection. लव। Hmm. इफ अ बॉय इंटेंसी, हाँ मदरली लव, वो इंटेंसी से एक्चुअली अगर डेप्रिवेशन हुई है, जी। मतलब प्रॉपरली बच्चे को न होके उसकी देखो बच्चे वाली ना एक, क्योंकि ये जो रेपिस्ट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, इनके ऊपर स्टडी हुई थी कि ये इनका माइंड ऐसा क्यों होता है, तो ये स्टडी बहुत डीप हुई थी। अब ये टॉपिक तो आउट ऑफ द टाइम चल रहा है मेरे, पर ये आपने उस वन पे लाइन स्टडी की बोला गई, था, उन्होंने बताया कि मदर ने, हाँ आपने वन लाइन बोला था। चलो बस करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे आप लेके वैसे जाते हैं, बिकॉज आजकल एवरीबडी हैज टू वैसे ईट। वैसे मैं यहाँ की बात से थोड़ा सा बात कहना चाहूंगी। आजकल लीला ड्रम फेमस हो रहा है, आजकल महिलाएं बदनाम हो रही हैं। जिसका जिसका जो जो आई थिंक जो जो शेयरिंग रह जाती है, बिकॉज हमें भी ना वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन्स टाइम। भूमिका बहुत जी, फेमस हो रहा है नीला, मतलब बहुत ही गलत बात है ये।
पर मतलब दिस महिलाओं सुनाई नहीं पर भी दिया। आई एम बात सॉरी, आई आती है। डिडंट हियर दैट। भूमिका जी, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट हियर दैट। मिस कर दिया, बट आई एम सेइंग जिसका जो भी मिस हो जाता है या रह जाता है, बिकॉज वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवनस टाइम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आप ग्रुप में प्लीज शेयर कीजिए जो रिफ्लेक्शंस रह जाती हैं। आई एम सो सॉरी दैट आई हैव टू कट एवरीवन शॉर्ट, सबको बीच में रोकना पड़ता है, बिकॉज हम ऑलरेडी वी आर रनिंग, यू नो, हाफ एन आवर वी आर ऑलरेडी टेकन from everyone's time. And I respect everyone's time, and I'm really grateful that everybody is so supportive. My mother was here today. मेरी मम्मी भैया भाभी आए हुए थे, तो मैंने बोला 8 बजे वाइंड अप होगा। They waited for me and they left. My husband came upstairs. मैंने बोला वो गए, कहते और तुम्हारी वेट करेंगे इतनी देर। मैंने कहा अच्छा अच्छा, I'll call them up, मतलब कॉल कर Apologies. Give our love to them. या my भैया भाभी and mama was here, तो वेट कर रहे बहुत थे, बहुत तो यही थैंक बोल यू, Sorry, आपने sorry. इतना टाइम दिया Let's उसके लिए। conclude उनको then. थैंक यू Sorry. बोलना चाहिए भाई, Let's जिन्होंने conclude. Yeah. Thank you हाँ। everyone for your time and for your energies, for sharing your thought, wisdom, and kind words. I would like to wind up. Sheetal, will you go ahead with the concluding prayer today? Yeah, Okay. please go ahead. Let's fold our hands. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you so Thank you much, everyone. everyone. Good थैंक night, यू, Shubhratri. Thank you, everyone. शुभ रात्रि।